إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ ہمارا چل رہا تھا الدرس الرابع، اس میں سے جو ہے یہ تمرین میں سے یہ چوتھا جو ہے سوال ہمیں پڑھنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے الکلمات الجدیدہ. تو میں کسی کو انمیوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں تو صرف وہی انمیوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ باقی سارے خاموشی رہیں گے. یہ ہے SU 26 رول نمبر 26 رول نمبر 26 رول نمبر 26 سن رہے ہیں میری آواز؟ رول نمبر 26 یہ ہے نصیر صاحب، نصیر احمد شاہ صاحب. نصیر صاحب سن رہے ہیں آواز؟ ارے اللہ کے بندو. ارشاد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے؟ ارشاد صاحب ہیں؟ ارشاد احمد جی صاحب. چلیے ماشاءاللہ، پڑھیں، آپ ہی پڑھیں. ضع فی الفراغ فیما یلی، put in حرف the جر blank مناسب. فیما یلی which is coming، یعنی آنے والی جو خالی جگہ ہے اس میں ڈالو حرف جر مناسب، a suitable حرف جر، ایک مناسب ٹھیک ہے. حرف جر اس میں حرف ڈالنا جر ہے ان چار حروف میں سے، من، الا، فی اور علی. فی اعلی. الکتاب ڈیش المکتب، الکتاب علی المکتب، ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب میز پر. کتاب جی میز. حضرت. ہاں صحیح ترجمہ. ہاں جی. الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہے. ذهب حامد الی الجامعۃ، حامد گیا یونیورسٹی تک. صحیح. خرج المدیر من المدرسۃ، محتمم یا پرنسپل نکلا مدرسے سے. صحیح. ذهب محمد من الصین الی الیابان، محمد نکلا چین سے یابان تک، جاپان تک. محمد گیا، ٹھیک ہے نا، ذهب کے معنی جی جانا. جی محمد گیا. جی جی حضرت. محمد ذهب گیا محمد چین سے من الصین الی الیابان. جاپان تک. صحیح ماشاءاللہ، بہت اچھا. ٹھیک ہے نا، وہ اس کا مطلب سمجھ لیا ہے ان چیزوں کو. تو باقی حضرات بھی اپنی جگہ اس کو نوٹ کر لیں، اور اسی طریقے سے اپنی جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں مثالیں وغیرہ بنائیں. تو دیکھا کرے قرآن پاک جب پڑھیں تو قرآن پاک میں ڈھونڈیں ان مثالوں کو، کس طریقے سے حروف جار قرآن نے استعمال کیے ہیں، کہاں پر کیسے. اب ہے اس کے بعد الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز، نئے الفاظ. تو جنہوں نے پڑھے ہوں گے ان کے لیے تو نہیں ہے، جنہوں نے نہیں پڑھے ہوں گے ان کے لیے نئے ہی ہیں. المدرسۃ، المدرسہ کہتے ہیں آپ کے اسکول کو، یا ہم اپنے مدارس کو کہتے ہیں، عموماً اسکولز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، المدرسۃ. اسی طرح ہمارے مدارس جو ہوتے ہیں جنہیں عموماً ہم دارالعلوم کہتے ہیں، ان کو بھی مدرسہ ہی کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے مدارس. مدارس پرائمری اسکول ہوگا اس کے لیے کہتے ہیں المدرسۃ الابتدائیہ. المدرسۃ الابتدائیہ، الابتدائیہ. المدرسۃ الابتدائیہ، ٹھیک ہے نا. سیکنڈری جو اسکول ہوتا ہے پرائمری سے اوپر، اس کے لیے المدرسۃ الثانویہ، المدرسۃ الثانویہ. ٹھیک، المدرسۃ الثانویہ.
کے بعد ہے ہمارا لفظ ایک الفصل کے معنی کلاس، اس کی جمع آتی ہے فصول. فصل کہتے ہیں کلاس کو، لیکن فصل موسم کو بھی کہتے ہیں فصل الربیع، موسم بہار کا مہینہ یا اس کا سیزن، موسم بہار کا موسم. فصل الربیع، فصل کے معنی موسم بھی آتے ہیں، فصل کے معنی موسم بھی، جس طرح کلاس کے معنی میں آتا ہے اسی طرح موسم کے معنی میں بھی. فصل الربیع کے معنی بہار کا موسم، فصل الخریف خزاں کا موسم، فصل الشتاء سردی کا موسم، فصل الصیف گرمی کا موسم، فصل الصیف. الحمام اس کے بعد تھا، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. حمام کہتے ہیں واش روم کو، جمع آتی ہے اس کی حمامات، وہ میں لکھا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. المرحاض کے معنی ٹوائلٹ، جمع آتی ہے مراحیض، یہ بھی لکھ چکے ہیں آپ. المطبخ کے معنی کچن، وہ بھی لکھ چکے ہیں، جمع اس کی مطابخ آتی ہے، وہ لکھ چکے ہیں. الغرفۃ کے معنی کمرہ، جمع بھی اس کی آپ لکھ چکے ہیں، غرفن آتی ہے، غرفات آتی ہے، غرفات آتی ہے، 3 جمع اس کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب ہم پیچھے لکھ چکے ہیں. الجامعات کے معنی یونیورسٹی، جمع آتی ہے اس کی جامعات، وہ بھی لکھا چکا ہوں. السوق کے معنی مارکیٹ، شاید اس کی جمع نہیں لکھائی تھی، اسواقن آتی ہے اس کی جمع، آتا ہے نا قرآن پاک میں، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ کھاتا بھی ہے اور بازار میں جو ہے، بازاروں میں جو ہے چلتا پھرتا بھی ہے. یعنی وہ اپنی جگہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر ایسا ہونا چاہیے کہ نہ اسے کھانے کی حاجت اور نہ یہ جو ہے گھر سے باہر وغیرہ نکلے، تو ایسا سمجھتے تھے. الیابان کے معنی جاپان ہے نا، آیا تھا لیسن میں بھی، الیابان کے معنی جاپان. تو یہ کنٹریز کے نام ہیں آپ کے، اپنی جگہ دیکھ لیجیے گا مختلف کنٹریز کو جو ہے کیا کہتے ہیں عربی میں. الصین کے معنی چائنا، الصین کے معنی چائنا. الہند کے معنی انڈیا. السیف المہند آتا ہے عربی کتب میں وغیرہ. ہندوستانی تلوار بڑی مشہور مانی جاتی تھی اس زمانے میں بھی. السیف المہند. ہندی تلوار السیف المہند، ٹھیک ہے نا، انڈین تلوار، ہندی تلوار. الفلپینو یہ فلپائنس، فلپائنز. المدیر کے معنی پرنسپل یا کمپنی کا جو شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو، کمپنی کو کہتے ہیں عربی میں الشریکۃ، کمپنی الشریکۃ، شریکۃ نکرہ اگر ہو، شریکۃ کمپنی. مدیر کہتے ہیں یا تو پرنسپل کو، جو محتمم ہو، پرنسپل ہو اسکول کالج وغیرہ کا، یا کمپنی کا ڈائریکٹر ہو، اس کے لیے مدیر کہتے ہیں. ذہابہ کے معنی وہ ایک آدمی گیا، خراجہ کے معنی وہ ایک آدمی نکلا. ذہابہ کے معنی ہی وینٹ اور خراجہ کے معنی ہی لیفٹ، خراجہ کے معنی ہی لیفٹ. آگے کہتے ہیں فی، علی، من، الا، یہ 4. فی کے معنی ان ہے نا، فی کا مطلب بتایا تھا میں نے ان. اعلی کا بتایا تھا آن، اور من کا بتایا تھا فرام سے، الا کا بتایا تھا ٹو. یہ 4 جو ہیں فی الحال انہوں نے اس لیسن میں سکھائے، یہ 4 من حروف الجر، کہتے ہیں یہ حروف جارہ میں سے. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف جارہ ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا ختم الدرس الرابع. اب ہے 5واں سبق، وہ بھی دیکھ لیجئے، وہ ہے الدرس الخامس. الدرس الخامس میں یہ آپ کو سکھائیں گے مضاف مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی، جو آپ الدرس الثامن جو القراءۃ الواضحہ کا تھا اس میں بھی پڑھ چکے ہیں. لہٰذا میرا کام بچ گیا، مجھے پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں اتنا کہوں گا کہ یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. مرکب کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ الفاظ سے بنا ہو وہ سینٹنس. پھر یہ مرکب تام بھی ہوتا ہے اور مرکب ناقص بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا مرکب ایک سے زیادہ الفاظ سے بنا ہوا جملہ
जो मुकम्मल होता है, मुकम्मल सेंस देता है, उसको मुरक्कब ताम कहते हैं, और जो मुकम्मल सेंस नहीं देता उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मुरक्कब की बेसिकली दो किस्में हैं, एक तो है ताम, ये भी लिख लीजिए ताम, दूसरा है नाकिस। नाकिस यानी जो अधूरा माना दी, इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है ना, आधी बात जिसे समझ में आ रही है, इनकम्प्लीट सेंस। तो ये जो आपका मुरक्कब इजाफी होता है, ये आपका यही मुरक्कब नाकिस की किस्म है। इससे मुकम्मल बात समझ में नहीं आती। मसलन आप कहें, जैसे उन्होंने कहा एक किताब हामिदिन, हामिद की किताब, हामिद की किताब, किताब हामिदिन, तो सामने वाला कहेगा ना, क्या आप 1000 दफा भी कहे हामिद की किताब, हामिद की किताब, अरे भाई क्या हामिद की किताब, नई है, पुरानी है, सस्ती है, महंगी है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। तो जब तक आप इसके साथ खबर ना बढ़ाए या मुब्तदा इसको न बनाए, तो उस वक्त तक जुमला मुकम्मल नहीं होता। तो मुरक्कब इजाफी जो है वो मुरक्कब नाकिस की किस्म है। मुरक्कब इजाफी वही कहते हैं कि दो इसम जो हैं, दो इसम होते हैं दो। एक मैंने आपको बताया था कि अमूमन क्या होता है कि ये पहला वाला इसम जो है ये नकिरा होता है, दूसरा वाला इसम जो है मारिफा होता है। इस नकिरा की हम इजाफत करते हैं इस मारिफा की तरफ, जिसकी वजह से ये नकिरा भी हमारा चेंज हो जाता है मारिफा में। मारिफा की तरफ इजाफत करने की वजह से नकिरा भी मारिफा हो जाता है। तो किताब हामिदिन, ये आपका किताबु भी यहाँ पर मारिफा बनेगा, खास किताब बनेगी। अब ठीक है ना। फिर एराब के बारे में भी इसके बात की थी कि मुजाफ जो पहला लफ्ज होता है इसमें, इस तरकीब में, इस मुरक्कब में, तो वो जो है उसका एराब हस्बल आमिल आता है, जैसा आमिल हो वैसा ही उसका एराब आता है। तो इस बा पर मसलन इस जुमले में किताबु जो है, अगर खुला हो, अगर हम सिर्फ किताबु हामिदिन कहे तो इस पर जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, और पेश भी, यानी मरफू भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, और मंसूब भी हो सकता है। लेकिन ये जो मुजाफ इले होगा, इस पर हमेशा दो जेर आएगी, या इस पर एक जेर आएगी जब इसके ऊपर अलिफ लाम हो, ठीक है ना। और इस मुजाफ पर जो है अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, मुजाफ इले पर अलिफ लाम दाखिल हो सकता है। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी थी अल-क़िराअतुल वाज़िहा में। तो अब इस लेसन को सिर्फ पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा करेंगे। अद-दर्सुल खामिस, फिफ्थ लेसन, ठीक है ना। खामिस कहते हैं फिफ्थ को, इस तरह राबिअ कहते थे फोर्थ को, इस तरह खामिस कहते हैं फिफ्थ को। ये हमारे नदवे में है अल मौलाना राबिया साहब दाम बरकातहू, नदवे के जो सब नाजिम है, हमारा जो इदारा है नदवतुल उलमा, उसके जो नाजिम हैं वो हयात है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। वो है मौलाना राबिया साहब, मोहम्मद राबिया, मौलाना मोहम्मद राबिया। राबिया कहते हैं फोर्थ को। ये दरअसल 5 भाई थे। तो इनके वालिद साहब ने या वालिदा ने जो है ये कहा था कि अगर मेरे बेटे पैदा हुए कुछ तो मैं उन सब का नाम जो है मोहम्मद रखूंगी। वालिदा ने इनकी गालिबन कहा था। तो इनके 5 बेटे हुए, उन पांचों का नाम इन्होंने जो है वो मोहम्मद रखा। लेकिन अब फर्क कैसे करे, तो पहले का नाम मोहम्मद अव्वल, दूसरे का नाम मोहम्मद सानी, तीसरे का मोहम्मद सालिस, चौथे का मोहम्मद राबे, पांचवे का मोहम्मद खामिस। तो ये मोहम्मद राबे जो है इस वक्त मौजूदा दारुल उलूम नदवत जो ताबे है नदवतुल उलमा की, उसके नाजिम है मौलाना राबे साहब। असल में इनका नाम है ये मोहम्मद इनका नाम है, राबे इनकी सिफत है, ये यानी ये चौथे वाले बेटे हैं। मोहम्मद खामिस थे, उनका पिछले साल जो है 1-2 साल पहले इंतकाल हुआ। उन्हीं का नाम जो है मोहम्मद वाज़े है। उन्होंने फिर नाम रखा था अपना वाज़े, मोहम्मद वाज़े। वो दरअसल थे मोहम्मद खामिस, यानी इनके 5वें भाई थे मोहम्मद खामिस। तो इस खामिस पर मुझे ये याद पड़ा। तो अब मुकालमा है इनके दरमियान, कन्वर्सेशन है सईद और यासिर के दरमियान। सईद और यासिर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मुजाफ मुजाफ इले को जो है इन्होंने इसी के जरिए से समझाना चाहा है। तो आप ये गुफ्तगू देख लीजिए, इसका तर्जुमा। सईद कहता है किताबु मोहम्मदिन हादा या यासिर। क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया था कि उनको हम ग्रामेटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, सिर्फ जवाबात जो होंगे उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पूछता है सईद किताब मोहम्मदिन हादा या यासिर, तर्जुमा आप देख लीजिए।
क्या आके माने क्या, ये आपने पढ़ा पहले लेसन में, हमजा इस्तिफामिया है, इसके जरिए से सवाल पूछा जाता है। क्या किताब मुहम्मदिन, तो इसका तर्जुमा होगा मोहम्मद की किताब। क्या मोहम्मद की किताब, हाजा ये, तो क्या ये मोहम्मद की किताब है, या यासिर, ए यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर। ठीक है ना, किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, किताब मुजाफ, मोहम्मदिन मुजाफ इलैह, इसीलिए मजरूर आया। हाजा, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर। ये या जो है, या जब किसी को निदा हम देते हैं उसके लिए अमूमन हम या इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उर्दू में ए, ओ आदमी वगैरह, ओ आदमी, है ना, ए आदमी, है इंसान, तो ए वहां पर हरफ निदा होता है। अरबी में हमारे पास है कुछ, उनमें से अमूमन जो इस्तेमाल होता है निदा देने के लिए वो है या, इसको हरफ निदा कहते हैं। या को कहते हैं हम हरफ निदा, ठीक है ना। और जिसको हम निदा दें उसको कहते हैं मुनादा, 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 जिसको निदा दी जाए, ठीक है ना, जिसको पुकारा जाए उसको कहते हैं मुनादा। और मुनादा के बारे में, एराब के बारे में याद रख लीजिए, अल मुनादा यकूनु मरफूअन, मुनादा जो होता है वो मरफू होता है, जिसको आप पुकारते हैं ना वो मरफू होता है, लेकिन एक पेश के साथ, ठीक है ना, उस पर तनवीन नहीं आ सकती, इसलिए यासिरुन था, लेकिन जब आपने इस पर या दाखिल की तो ये हो गया या यासिरुन। तो ये कायदा आप लिख लीजिए, अल मुनादा, आप आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल के लिए अल मुनादा यकूनु मरफूअन। मुनादा मरफू होता है, मुनादा मरफू होता है, और ये याद रख लीजिएगा कि वो एक ही पेश उस पर दाखिल होती है, तनवीन इस पर नहीं आ सकती, मुनादा पर तनवीन नहीं आ सकती जब वो मारिफा हो, ठीक है ना। जब मारिफा हो ना, मारिफा, मारिफा जब हो, खास नाम हो, ठीक है ना, उस वक्त मुनादा पर तनवीन नहीं आ सकती, एक ही पेश जो है वो इस्तेमाल होगी, तनवीन नहीं आ सकती जब मारिफा हो मुनादा, साथ में लिख लीजिए, जब मुनादा मारिफा हो, मारिफा मुतय्यन हो, तो क्या कहते हैं, उस पर तनवीन नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो किताब मोहम्मदिन हादा या यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर। तो यासिर जवाब देता है ला, नहीं, हाजा किताब हामिदिन, हाजा मुब्तदा, ये किताब मोहम्मदिन, कल की तरह जिस तरह क़िराअतुल वाज़िहा में पढ़ा था, नहीं, नहीं, ये अलग है, ठीक है ना। हाजा फिर आगे है, ये मुब्तदा है, हाजा किताब हामिदिन, ये हामिद की किताब है, किताब मुजाफ, हामिदिन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर खबर, ठीक है ना, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर खबर, नहीं, हाजा मुब्तदा यहाँ पर, और किताब हामिदिन मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा, है ना, खबर, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर खबर। आगे पूछता है सईद, ऐना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है, मोहम्मद की किताब कहाँ है, वेयर इज मोहम्मद बुक, वेयर इज द बुक ऑफ मोहम्मद। तो किताब मुजाफ, मोहम्मदिन मुजाफ इलैह, मोहम्मदिन क्यों आया, इसलिए कि मुजाफ इलैह है, और मुजाफ इलैह का एराब वो मजरूर होता है, ठीक है ना। और चूंकि ये आलम है और अलिफ लाम इस पर दाखिल नहीं हुआ, अगरचे मारिफा है, मुजक्कर का नाम है, इस पर तनवीन आ सकती है, इसलिए दो जेर की तनवीन इस पर आई। तो यासिर जवाब देता है, हुआ अलल मकतबी, वो यानी किताब की तरफ जमीर जा रही है, कि वो यानी किताब, अलल मकतबी वो टेबल पर है, हुना का उधर, हुना का के माना देर, ये जर्फ है आपका, ठीक है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे, जर्फ किसे कहते हैं, जिससे जगह या वक्त बताया जाए। हेयर के लिए आप अरबी में कहते हैं हुना, जब आपको कहना हो हेयर, अगर आपको कहना होता हुआ अलल मकतबी होना, इट इज हेयर ऑन द टेबल, इट्स हेयर ऑन द टेबल, यानी द बुक इज हेयर ऑन द टेबल, तो उसके लिए हुना कहेंगे। और आपको कहना हुना का, यानी देयर कहना हो, तो आप करेंगे इस्तेमाल हुना का, देयर, देयर, ठीक है ना, हुना का देयर, तो हुना के माने हेयर, हुना का के माने देयर।
तो हुआ, इसके बाद आपको पता ही है कि हुआ को मुब्तदा मानेंगे, उसके बाद एक इसमें फाइल यहाँ पर काइनुन साबितुन वगैरह, इसी तरह वो महजूफ मानेंगे। तो हुआ काइनुन साबितुन अलल मकतबी, जार मजरूर मुतल्लिक हुआ तो बनाएंगे खबर, ठीक है ना। साइद पूछता है आयना दफ्तरु, होना का ये इसका ज़र्फ है फिर, ठीक। आयना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की रजिस्टर कहाँ है, दफ्तर रजिस्टर को कहते हैं, जमा इसकी कहते हैं दफातिरु। अम्मार की रजिस्टर कहाँ है, तो यासिर कहता है हुआ, यानी वो, यानी रजिस्टर अम्मार की दफ्तर, आला मकतबिल मुदर्रिस, वो मुदर्रिस के टेबल पर है, मुदर्रिस की मेज पर है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मुजाफ का एराब हस्बल आमिल होता है, आमिल के एतबार से, वरना आपने देखा था कि ऊपर वाले जुमलों में मुजाफ मरफू था, लेकिन चूंकि यहाँ पर आला आया, आला आपको पता है कि हर्फ जर है, ठीक। तो मकतबी आया यहाँ पर मजरूर, तो आप देख रहे हैं कि मकतबी के नीचे जेर आई चूंकि आला की वजह से, इसलिए मुजाफ यहाँ पर मजरूर है। और इसके बाद मुजाफ इले तो है ही मजरूर है, क्योंकि मुजाफ इले मजरूर होता है, और यहाँ पर चूंकि अलिफ लाम आया इस पर, तो इसलिए अल मुदर्रिसी एक ही जेर आएगी। अलिफ लाम जब दाखिल हो जाए इसम पर तो आपको मालूम है कि उस पर तनवीन नहीं आ सकती, और मुजाफ का एराब हस्बल आमिल, आमिल के एतबार से। आगे पूछता है सईद, कलमु मन हादा या अलीयु, कलमु मन, ये किसका कलम है ए अली। तो ये कलमु मन जो है ना यहाँ पर, ये भी बन रहा है मुजाफ मुजाफ इलैह। ये देख लीजिए कैसे, इसको समझ लीजिए इस वाले जुमले को। कलमु मन, ये सवाल पूछ रहा है दरअसल, कलमु मन, तो यहाँ पर कलमु मुजाफ है, आपका मुजाफ है कलमु, और मन जो है मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह। कलम मुजाफ और मन मुजाफ इलैह। हाँ, क्योंकि तर्जुमा इसका होगा किसका कलम, किसका कलम, हुज पेन, तो ये इजाफत दिखा रहा है मन की तरफ, है ना। यहाँ मन की जगह फिर हम मसलन इसमें ये कह रहा है कलमुल मुदर्रिस, तो ये मुदर्रिस को मन की जगह दे रहा है ना। मन के जरिए से किसी आकिल इंसान के मुतालिक सवाल पूछते हैं, तो ये मन में यहाँ हम जैद को भी कह सकते हैं, सईद के लिए भी कह सकते हैं, सईद जैद की जगह यहाँ पर मन आया, क्योंकि देखो मन को अगर हम रिप्लेस करें किसी नाम से, मैं यहाँ कहूँ जैद, तो वो क्या बनता, कलम जैद, जैद का कलम। अब इसी जैद को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर मन से, और सवाल बना रहे हैं कलम मन, किसका कलम, हुज पेन। तो ये इजाफत हो रही है कलम की मन की तरफ, तो कलम मुजाफ मन मुजाफ इलैह। अब आप यहाँ पर एक सवाल कर सकते हैं कि आपने तो उस्ताद जी बताया कि मुजाफ इलैह जो है मजरूर होता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इस नून पर जज्म है इतनी बड़ी, है ना। आप देख रहे हैं ना नून पर जो है वो जज्म है, तो आप सवाल कर सकते हैं ना कि नून पर जो है वो जेर कहाँ गई, इस पर जज्म क्यों है, इस पर सुकून क्यों है। तो चूंकि कल मैंने शायद आपको बताया एक चीज, हमारे पास अस्मा होते हैं, एक की किस्म जो है वो कहलाती है मबनी, और दूसरी कहलाती है मुआरब है, मैंने बताया था आपको कभी, शायद याद आ रहा है। तो मबनी मैंने कहा था कि जो स्टैटिक होती है, एक जगह पर ही रहती है, उसमें एराब चेंज नहीं होती, जैसे आपका हाजा है, तो ये जाल पर जबर हमेशा ही रहेगी, चाहे इसके सामने मिन आ जाए, हरफ जर आ जाए कोई, ये मिन हाजी नहीं हो सकता, मिन हाजी अलिफ आएगा फिर ना, वैसा नहीं हो सकता, ये हाजा ही रहेगा। तो इसको हम कहेंगे महल्लन, ये भाई मजरूर है, प्लेस वैल्यू इसका महल, महल्लन यहाँ पर प्लेस वैल्यू महल के एतबार से मजरूर है, लेकिन लफ्जन जो है वो यहाँ पर ये मंसूब है। इसी तरह मन जो है ये लफ्जन मजरू है ना, मजजूम है, इस पर जज्म है, जज्म जिस हर्फ पर हो उसको मजजूम कहते हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू इसका मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। महल, महल्लन कहते हैं, फिर एक टर्म एक कहते हैं इसके लिए, टेक्निकल टर्म कि महल्लन मजरूर है, महल्लन मजरूर।
लफ्जन तो ये मजजूम है, इस पर जज्म है, लफ्जी एतबार से हमें दिख रहा है इस पर जज्म है, लेकिन प्लेस वैल्यू के एतबार से ये चूंकि मुजाफ इलैह है लिहाजा महल्लन मजरूर है प्लेस वैल्यू के एतबार से। तो कलम मन हादा, ये किसका कलम है ए अली, अली कहता है। तो या अली आप देख रहे हैं, या मैंने बताया कि हरफ निदा है, अली यून था असल में, लेकिन मुनादा मरफू होता है और एक ही पेश उस पर आएगी, तो या अली, या अली। अली अल्लाह ताला का भी नाम है, लेकिन चूंकि रवाफिज वगैरह या अली कहकर हजरत अली को मुराद लेते हैं, तो लिहाजा इससे मना ही किया जाएगा कि इस तरह का नारा ऐसे अवामी मजमे में न दिया जाए। अलीयुन, अली कहता है हाजा, ये कलमुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का कलम है। तो यहाँ पर हाजा आपका मुब्तदा, कलमुल मुदर्रिसी मुजाफ, मुजाफ इलैह मिलकर खबर। सईदुन आगे पूछता है सवाल, ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग कहाँ है। हकीबतुन बमाना बैग, ठीक है ना। हकीबा का माना बैग, इसकी जमा आती है हकाइबु। हकीबतुन हकाइब, एक हकाइबु इसकी जमा। सईदुन पूछता है ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का बैग कहाँ है। तो जवाब देता है अली, हिया वो, क्योंकि यहाँ पर हकीबा मुअन्नस है, गोलता की वजह से, ताय मुदव्वरा की वजह से, लिहाजा उसकी तरफ जो जमीर आई वो थी हिया। हिया आपको पता है वाहिद मुज़क्कर गायब की जमीर है। हिया वो यानी बैग, तहत अल मकतबी, तहता के माने नीचे, अंडर, यहाँ का जर्फ है, यानी वो हर्फ जो दिखाता है प्लेस या प्लेस को, ठीक है ना, जरफे मकान है ये ताहता वगैरह जो है ये डायरेक्शंस के लिए आता है। ताहता, फौका, अमामा, खल्फा, है ना, ये दो चार पाँच छः है ये, अप डाउन, आगे पीछे, है ना। अमामा के माने फॉरवर्ड आगे, खल्फा के माने पीछे, फौका के माने ऊपर, और ताहता के माने नीचे। ताहतल अर्ज हम कहते हैं, ताहत सरा, ताहत सरा कुरान पाक में है सूरह ताहा में, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, उसी का है जो आसमान और जमीन में है और उनके दरमियान है, और जो तहत सरा है यानी गीली मिट्टी के नीचे, तहत सारा। तो ये तहतल मकतबी है, तो तहता यहाँ पर जर्फ है आपका, लेकिन आपका जो जर्फ है ना, जर्फ यानी वो लफ्ज जो आपका प्लेस दिखाता है और कभी कभी वक्त भी दिखाता है, तो ये मुख्तलिफ किस्में इसकी, जर्फ मकान जो है वगैरह, जर्फ जमान होता है। तो ये जर्फ आपका एक्ट करता है, अमल करता है मुजाफ के तौर पर, यानी जैसा मुजाफ जो है अमल करेगा, यानी मुजाफ क्या अमल करता है कि अपने मुजाफ इलैह को जो है इसके बाद मुजाफ इलैह आएगा, उसको जो है वो जर दिया जाएगा, जेर दी जाएगी। तो इसी तरीके से ये तो इसी तरीके से ये जो है तहतल मकतबी, ये तहता यहाँ पर बतौर मुजाफ अमल करेगा, और इसके बाद अल मकतबी जो है वो मजरूर आएगा, तो ये कहलाएगा ज़र्फ, लेकिन मानवी तौर पर यहाँ पर ये मुजाफ ही है, और अल मकतबी इसके बाद मुजाफ इलैह। ठीक है, इसमें आज इतना ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।